Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum class. In today's lecture, we are going to start our new topic. Our new topic is called strings. Regarding strings, we have already studied briefly in our previous lectures, in different lectures. In today's lecture, we are compiling all those previous discussions at one place, and a few more commands you will see in this lecture. And strings is basically grouped together at one place in this lecture, lecture number 9. These are the topics that we are going to cover. Basics of a string. First, we'll see what a string, what is its directory. We have already seen that, but this is just revision. Then there is a new topic regarding cin versus string. Both commands, cin and string, both can handle string data. A string is a type of data which can be handled by both commands, but there are some limitations and advantages of cin command as well as for string command. So we will look at it. A string as an array example marksheet. This is the topic we have already studied when we discuss array. We discuss with respect to the marksheet example and how to use string data as in an array. Then the next topic is string character sequences. We have already studied this topic as well. Character sequences, like we know that arrays is a capable of providing consecutive locations to store data. If we are using arrays of character, is basically we are handling strings. String arrays, lexicographical order. This will be new topic. Lexicographical order. This order is basically an easy word. This order is known as dictionary order. Means you are representing your data alphabetically in alphabetical order. So that is known as lexicographical order. We will see its example. String commands, there are a few examples, few or more commands which can handle string in an efficient ways. These are the commands that is compiled by the libraries. It is already available in the string libraries. So we are just looking at these commands, and then our lecture ends up with few exercises. Now, in part 1, today's lecture, we are going to discuss first 4 topics, that is basic of a string, cin versus a string as an array, and a string as a character sequences. And in our next lecture, we will discuss the string arrays, string commands, and exercise. So, slide number 3, basis of a string. It's just a revision as well. In our lecture related to loop, in which we discuss for loop, we discuss this example as well. It was a very simple example which basically demonstrated the use of a string. This is the basic example. On your screen, you can see a code in which we have used a data type string. So string is a data type like integer and character and float and double and others. स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज करने के लिए जब भी आप लेंगे उसकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है जो आपको इन्वॉल्व करवाना पड़ेगा, इंक्लूड करवाना पड़ेगा, जो कि आपको हेडर में यू आर एबल टू सी दिस इन हेडर, दैट इज स्ट्रिंग लाइब्रेरीज इज ऑलरेडी इंक्लूडेड. स्ट्रिंग लाइब्रेरी अगर इंक्लूड नहीं कराएंगे तो उसका डेटा टाइप आप यूज करेंगे तो वो नीचे जो रेड लाइन पे एरर आ रहा होता है वो शो हो जाएगा. उसके साथ डेटा टाइप के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कराया जाता है, कोई भी उसका नेम दिया जाता है. इस वक्त हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर करा उसका नाम रखा है n. सी इन कमांड आपको आगे नजर आ रही है. हमने यूजर से बोला एंटर योर नेम. जैसे ही यूजर नेम एंटर करेगा, सी इन कमांड is the command that is responsible to take input from user. This command then store whatever data is being inputted. This command will store that data into variable and variable n is certain location within the memory. उस n में जाके उसने यूजर का डेटा रख दिया. देन फॉर लूप है जिसने 10 टाइम्स उस वैल्यू को जो भी n में रखा गया था उसको उसने प्रिंट करवाया है. स्क्रीन पे आपको आउटपुट नजर आ रहा है. एंटर योर नेम, जो भी नाम था वो एंटर किया गया और वो नेम 10 टाइम्स प्रिंट कर दिया. तो बेसिकली दिस एग्जांपल जो है इज रिलेटेड टू द फॉर, लेकिन हमने उसमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट लिया था. तो हम बेसिकली उसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उठा रहे हैं ताकि हमें स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझना आसान रहे, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए. तो स्ट्रिंग कमांड यूज करने के लिए स्ट्रिंग की सिंपल डेटा टाइप होगी string.
स्पेस के बाद आप कोई भी आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। स्ट्रिंग कमांड यूज करने से पहले आपको उसकी लाइब्रेरी हेडर में इंक्लूड करानी होगी। जैसे सी इन लेने का तरीका है स्ट्रिंग, बिल्कुल हम उससे उस तरीके से स्ट्रिंग को इनपुट भी ले सकते हैं, और जैसे सी आउट कराने का नॉर्मली तरीका होता है स्ट्रिंग को हम उस तरीके से सी आउट भी करवा सकते हैं। अब हम स्ट्रिंग की अपनी कुछ बिल्ट इन कमांड ले रहे हैं। एक आपको नजर आ रहा है सी इन वर्सेस स्ट्रिंग, बेसिकली सी इन वर्सेस गेट लाइन, ठीक है, ये दो आपके पास कमांड्स है। We can use cin to get strings with the extraction operator as we do with fundamental data type variable. cin के साथ हम कोई भी वेरिएबल डेटा टाइप यूज करके हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को इंक्लूड करवा सकते हैं या ऐड करवा सकते हैं या यूजर से ले सकते हैं। However, cin stops reading as soon as it finds any blank space character. Now, this is the limitation of cin command. What is the limitation? That if user try to enter his full name, for example, I'm trying to write Bushra Ijaz, cin command is only able to get the first letter Bushra, और उसके बाद जो Ijaz word है, it won't be able to get that letter. However, cin stops reading as soon as it finds any blank space character. तो cin कमांड की लिमिटेशन ये है कि जब तक कोई भी आप नाम लिख रहे हैं, कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिख रहे हैं, उसमें स्पेस कैरेक्टर नहीं आ जाता, वो उसको ले लेगा, लेकिन स्पेस के बाद की सारी चीजों को जो है वो नहीं काउंट करेगा। यानी वन टाइम जो इनपुट होगा वो स्पेस तक के लिए वो काउंट कर सकता है। In order to get entire line, we can use function getLine. cin कमांड चूंकि स्पेस के बाद इनपुट नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि मुझे कुछ पूरी लाइन लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू राइट दिस इज लेक्चर नंबर 9, अगर मुझे ये पूरा लिखना है तो सी इन कमांड इज नॉट एबल टू गेट दिस होल लाइन, इट कैन ओनली टेक इनपुट दिस, और आगे के सारे जो इस पैराग्राफ है या लाइन है वो मिस कर देगा। तो गेट लाइन फंक्शन इस लिमिटेशन को खत्म करती है। अब आपने लिखा दिस इज लेक्चर नंबर 9, तो गेट एंड कमांड इज कैपेबल ऑफ टेकिंग इनपुट विद स्पेसेस एज वेल। तो जो सीन की लिमिटेशन थी गेट लाइन, उसको ओवरकम कर रही है, विच इज मोर रिकमेंडेबल वे टू गेट स्ट्रिंग इनपुट विद सीन। तो जब आपको स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो ट्राई टू यूज गेट लाइन कमांड। गेट लाइन अगेन उसके साथ आपको ग्राउंड ब्रैकेट्स नजर आ रहे हैं, तो गेट लाइन फौरन आप समझ जाए कि इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन which resides in string directory, so you have already included string directory in your library, तो अपने अपने फाइल्स में अपनी कोडिंग में उसको ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया, तो गेटलाइन कमांड जो है आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स ये है जो आपको स्क्रीन पे एज एन एग्जांपल नजर आ रहा है। गेटलाइन का सिंटैक्स होगा कि पहले आप गेटलाइन लिखेंगे, आपने ऊपर मैसेज लिख दिया कोई भी सी आउट करके, एंटर योर नेम, ठीक है, नीचे फॉरन सी इन की जगह आपने लिखा गेटलाइन। गेटलाइन के बाद आपको यहाँ पे बताना होगा कि गेटलाइन जो भी कमांड है उसको आप इनपुट ले रहे हैं और इनपुट उठा के किसी भी आइडेंटिफायर में या वेरिएबल में रख रहे हैं। तो सिंटैक्स क्या हो जाएगा, कीवर्ड यूज करेंगे गेटलाइन ब्रैकेट्स ओपन सी इन, या आप यूज करेंगे दिस कीवर्ड कॉमा, उसके बाद कोई भी आइडेंटिफायर, यहाँ पे एनी नेम लिखा हुआ है, इट कैन बी एनी आइडेंटिफायर बट देयर मस्ट बी एन आइडेंटिफायर, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद सेमीकोलन। String literals can extend to more than a single line of code by putting a backslash sign at the end of each unfinished line. स्ट्रिंग लाइन अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज टाइप करना है और वो बड़ा होता जा रहा है, जैसे हम सी आउट की कमांड यूज कर रहे हो तो उसके साथ हमने इन्वर्टेड कॉमा में कोई भी मैसेज लिखा, फॉर एग्जांपल दैट मैसेज इज गेटिंग बिगर, इट इज गोइंग टू ऑन मल्टीपल लाइन्स, मोर देन वन लाइन्स अगर वो मैसेज जा रहा है तो न्यू लाइन जाने के बाद उसके जो ग्रीन कलर है वो हट जाते हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपका मैसेज जो कि मल्टीपल लाइन्स को कवर कर रहा है लेकिन वो स्टिल मैसेज है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप कोई बात लिख रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करने के लिए हमें कंपाइलर को बताना पड़ता है एस्केप कैरेक्टर जो हमने पढ़ा था बैकस्लैश साइन, वो बैकस्लैश साइन के थ्रू आप इसको बता सकते हैं कि स्ट्रिंग इज कंटिन्यू टू द नेक्स्ट लाइन एज वेल। तो स्ट्रिंग अगर आपके एक ही लाइन में पूरा नहीं आ रहा है, स्ट्रिंग से मुराद ये जो इन्वर्टेड कॉमास में हम मैसेज लिख रहे हैं, अगर वो एक ही लाइन में पूरा नहीं आ रहा है तो वो नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए आप बैकस्लैश से बताएंगे कि ये स्ट्रिंग अभी कंटिन्यू है, तो वो कंटिन्यू रहेगा अंटिल वो दोबारा इन्वर्टेड कॉमास उसको पिक ना कर ले। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, की पॉइंट।
अब क्लास ये प्रोग्राम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्लाइड नंबर 5 पे। सी इन और गेट लाइन दोनों कमांड का जो है वो कंपैरिजन, सी इन वर्सेस स्ट्रिंग नहीं है, गेट लाइन है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि कौन स्पेसेस रीड करने का क्या तरीका है। हमने हैश इंक्लूड करके स्ट्रिंग डायरेक्टरी को इंक्लूड करवा दिया। आईओ मेन स्ट्रीम वगैरह जो आईओ स्ट्रीम वगैरह लाइब्रेरी सब ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रिंग से इसका स्नैपशॉट लगाया गया ताकि आपको लाइब्रेरी का आइडिया रहे। उसके बाद क्लास आपको नेक्स्ट लाइन पे नजर आ रहा है कि एक डेटा टाइप दिया हुआ है हमने स्ट्रिंग, और उसके बाद हमने कोई भी वेरिएबल दे दिया है नेम, और एक और वेरिएबल str दे दिया, हमने दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा दिए। मैसेज हमने दिया एंटर विद नेम, यूजर को हमने बोला कोई भी नाम लिखो लेकिन स्पेसेस उसमें डालो, और उस जो भी वो इनपुट दे रहा है उसको हमने गेट लाइन के थ्रू इनपुट लेने की कोशिश की है। तो गेट लाइन का सेंटेक्स क्या होता है कि गेट लाइन ब्रैकेट सी इन कॉमा एनी वेरिएबल। तो हमारे पास दो वेरिएबल थे नेम और एसटीआर वाले वेरिएबल में हमने यूजर का इनपुट गेट लाइन के थ्रू लेकर उसमें रख दिया, सेमीकोलन के साथ अपनी लाइन को एंड कर दिया। मैसेज हमने प्रिंट करा दिया गेट लाइन कमांड सपोर्ट्स स्पेसेस, और उसके बाद एसटीआर कमांड यानी एसटीआर के अंदर जो भी यूजर ने इनपुट दिया है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, ये हमने मैसेज को प्रिंट कराया, उसके साथ वेरिएबल या वैल्यू को हमने प्रिंट करा दिया। देन वी हैव क्लास सी आउट इंटर नेम विथ स्पेस। दोबारा मैसेज किया लेकिन नाउ दिस टाइम वी आर गेटिंग इनपुट यूजिंग सी इन कमांड, और हमने नेम नाम के एक वेरिएबल में उसको सेव कर लिया, और उसके बाद हमने उस नेम नाम के वेरिएबल को सी आउट करवा दिया। गेट सी एच कमांड इज to hold the screen until a character is entered. Get character. CH stands for character. So get CH command is to hold the screen until user enters a character. ठीक है, तो उस तक वो इसको एंटर होल्ड करके रखेगा, उसके बाद इसको एंड कर देगा, क्योंकि एंड हुआ है, एंड नहीं हुआ हो तो कोई स्टेटमेंट होती तो वो कंटिन्यू होती। आगे बढ़ते हैं। क्लास आपके पास स्क्रीनशॉट यहाँ पे नजर आ रहा है। आउटपुट एंटर नेम विथ स्पेस, यूजर को हमने कहा कि स्पेस के साथ एंटर करो, तो यूजर ने स्पेस के साथ एंटर कर दिया, दो नाम फुल नेम सॉर्ट ऑफ एंटर कर दिया। गेट लाइन कमांड से जो हमने इनपुट लिया था उसको जब हमने व्यू करवाया एसटीआर वेरिएबल, तो आपके पास देखिए पूरे वेरिएबल के अंदर जो भी नाम था वो पूरा का पूरा शो हो रहा है, बुशरा स्पेस इजाज। यही काम हमने क्लास यूजर को बोला कि दोबारा स्पेस के साथ एंटर करो, लेकिन अब हमने इनपुट सी इन के साथ लिया है, और सी इन कमांड के साथ जब हमने देखा तो आउटपुट हमारे पास NAME, हमने नेम के अंदर इनपुट लिया था, लेकिन जब नेम को प्रिंट करवाया तो सिर्फ स्पेस से पहले तक की चीजें प्रिंट हुई है, स्पेस के बाद प्रिंट नहीं हुई। तो दोनों कमांड्स के अपने यूसेजेस अपने लिमिटेशंस है। तो सी इन कमांड को आप यूज कर सकते हैं फॉर सिंगल वेरिएबल, सिंगल वर्ड, लेकिन अगर इफ यू वांट टू टेक मल्टीपल वर्ड एज एन इनपुट तो यू शुड गो फॉर गेट लाइन कमांड। स्लाइड नंबर 6, स्ट्रिंग एज एन एरे, और इसकी मार्कशीट की एग्जांपल हमने क्लास एरे में ये देख ली थी। हमने देखा था ये डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज करके स्ट्रिंग को हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट 5, और हमने तमाम सब्जेक्ट्स के नामों को, नाम पूरा एक वर्ड है, स्ट्रिंग है, इन डबल इन्वर्टेड कॉमास में लाके हमने जो भी 5 नाम थे उनको हमने सेव करवा दिया। ये एग्जांपल हमने एरे में देखी थी जब हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट का इनपुट ले रहे थे, तो एक दफा हमने किया था कि नाम प्रिंट नहीं करवाए थे, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 करके 5 सब्जेक्ट्स इनपुट लिए थे। फिर हमने उसका मॉडिफाइड वर्जन देखा था जिसकी वीडियो भी मौजूद है, कि हम यूजर से जो है वो सब्जेक्ट नहीं लिख रहे बल्कि सब्जेक्ट का नंबर नहीं लिख रहे बल्कि सब्जेक्ट का नाम प्रिंट करवा रहे हैं। तो वो तरीके के लिए हमने स्ट्रिंग कमांड यूज किया था। तो वो वाली एग्जांपल यहाँ स्ट्रिंग के टॉपिक से रिलेट कर रही है कि अगर हमें स्ट्रिंग को एज एन एरे यूज करना है तो सिंपल जैसे हम नॉर्मल एरेस डिक्लेयर कर रहे होते हैं, स्ट्रिंग का भी एरे बिल्कुल वैसे ही डिक्लेयर होगा। इसका भी आपको साइज बताना होगा, जैसे यहाँ पे आपको जो है 5 साइज बताया गया है। अब 5 वर्ड्स आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, यही काम हमने करेक्टर के लिए किया था, लेकिन करेक्टर के लिए करेंगे तो 5 करेक्टर डाल सकते हैं, और उसके बाद इसका आउटपुट है। स्लाइड नंबर 8 क्लास स्ट्रिंग करेक्टर सीक्वेंसेस, ये भी हमारे पिछली स्लाइड से रिलेटेड है। सॉर्ट ऑफ रिवीजन चल रहा है, जिसने एरेस के लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं और उसके एक्सरसाइजेस किए हैं, तो वो उसके लिए ये बिल्कुल इजी है कैचअप करना। और जिन्होंने नहीं किया है वो एक बार फिर एरेस के लेक्चर्स देखिए, क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ रिवीजन है। जहां जहां हमने स्ट्रिंग पढ़ा था उस सबको एक जगह किया है।
हमने फॉर लूप में स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, वो फॉर लूप वाली एग्जांपल नजर आई आपको। एरेज में हमने स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा कंटिन्यू किया एंड तो एरेज की एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं। स्ट्रिंग को क्लास कैरेक्टर सीक्वेंसेस भी कहते हैं। ये जो स्लाइड 9.4 स्लाइड है, इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि कैरेक्टर्स, अगर आप लाइन से कैरेक्टर्स इंटर कर रहे हैं तो वो बेसिकली आप स्ट्रिंग इंटर कर रहे होते हैं। As you already know, the C++ standard library implements a powerful string class which is very useful to handle and manipulate strings of characters. However, because strings are in fact sequences of characters, we can represent them also as plain arrays of char elements. तो basically string जो है वो sequence of characters है, तो आप इसको simple character array के through भी indicate कर सकते हैं। जैसे char name है, name का size हमने 20 दिया है, उसके हमने अंदर जो भी लेटर लिखा है, जो भी वर्ड्स लेटर्स लिखे हैं, वो सब बेसिकली स्ट्रिंग के तौर पे हम उसको दिखा रहे हैं। कैरेक्टर सीक्वेंस इज ऑलवेज टर्मिनेटेड बाय स्लैश जीरो, दैट इज नॉट कैरेक्टर की बात भी हमने अरे के टॉपिक में पढ़ी थी कि जब भी आप कैरेक्टर देंगे तो हम कैरेक्टर के लिए स्लैश जीरो की जगह काउंट करके देते हैं साइज में। यानी अगर मुझे पाकिस्तान लिखना है तो 20 तो अंदाजन दिया हुआ है, मिनिमम साइज जो होगा PAKISTAN 8 लेटर्स हैं प्लस नल करेक्टर। मिनिमम कम से कम जो हमें पाकिस्तान लिखने के लिए साइज चाहिए होगा वो 9 लेटर्स का चाहिए होगा। पाकिस्तान के 8 करेक्टर्स और नल करेक्टर की जगह हमें बना के देनी होती है। अदरवाइज वो एन को हटा के, लास्ट लेटर को हटा के अपना नल करेक्टर डाल देगा, तो हमारा जो है वो डेटा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एहतियातन क्या करते हैं कि करेक्टर जो है, अगर 8 है तो हम 20 दे दिया, 20 है तो 50 दे दिया, 50 है तो 80 दे दिया। हम साइजेस को जो है ज्यादा रखते हैं करेक्टर्स के केसेस में। If you do not use slash zero, still leave one element for null character while declaring array size. अगर आप slash zero नहीं लिख रहे हैं तब भी आप उसकी जगह बना के देंगे। The null character must be added by compiler. एक और एग्जाम्पल क्लास, इसमें हमने 4 ग्रीट, ये एग्जाम्पल जो हमने देखी थी, ठीक है, हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स को जो है वो एरेज डिक्लेयर किए हैं। एक हमने ग्रीट के नाम से डिक्लेयर किया, 5 साइज रखे क्योंकि गुड के 4 लेटर्स है। स्लैश जीरो हमने नहीं डाला मगर उसकी जगह बना के दी है। 5 का मतलब है 4 लेटर्स फॉर गुड एंड 1 लेटर फॉर नल कैरेक्टर। देन ग्रीट 2 के नाम से हमने ब्लैंक छोड़ दिया है, तो हमें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे कि ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो खुद ही लेटर्स काउंट करके, जैसे आफ्टरनून के कितने लेटर्स बने उसके साथ प्लस नल कैरेक्टर, और आफ्टरनून से पहले आपको स्क्रीन पे स्पेस भी नजर आ रहा है, तो वो इन तमाम कैरेक्टर्स को काउंट करके ग्रेड 2 के साइज डिक्लेयर कर देगा। फिर हमने फर्स्ट एंड लास्ट के नाम से दो एरेज डिक्लेयर किए हैं जिनके हमने साइजेस नहीं बताए हैं, सॉरी जिसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, बस साइजेस बता के इसके छोड़ दिए। उसके बाद क्लास हमने cin कमांड यूज करते हुए पहले फर्स्ट इनपुट लिया, फिर लास्ट इनपुट लिया और हमने फिर प्रिंट करवा दिया वही फर्स्ट और लास्ट नाम से सिस्टम को पॉज करके हमने अपने प्रोग्राम को एंड कर दिया। स्क्रीन पे आपके पास आउटपुट नजर आ रहा है। फर्स्ट नेम हमने बोला, यूजर ने एंटर किया प्रोग्रामिंग, लास्ट नेम हमने बोला यूजर ने एंटर किया फंडामेंटल्स, और उसके बाद हमने मैसेज प्रिंट करा दिया गुड आफ्टरनून। जो भी यूजर ने इनपुट किया था उसको हमने आउटपुट करा दिया। चूंकि cin कमांड एक वक्त में एक वर्ड ले रही होती है, स्पेस के बाद दूसरा वर्ड नहीं उठा रही होती, तो हमने दो अलग अलग तरीके से इनपुट लिया है। आप चाहे तो गेट लाइन करके फुल नेम जो है वो इनपुट ले सकते हैं। तो गेट लाइन कमांड आपके पास आ गई है, इसी प्रोग्राम को आप गेट लाइन के साथ भी बना सकते हैं और 4 एरेज को डिक्लेयर हटा के आप यहाँ पे स्ट्रिंग एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है क्लास लेक्सिकोग्राफिकल एरर ऑर्डर, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अभी तक के आपके पास यही टास्क है और मतलब यही एग्जाम्पल्स है, कुछ करने को नहीं है। इसको पढ़ें, इसको सुने और जो एग्जाम्पल्स लिखी हुई है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना कमेंट कीजिए, अटेंडेंस लगाइए, और उसके बाद पार्ट 2 में हम बाकी जो है वो कंटिन्यूशन लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, उसको सुनिएगा, उसको देखिएगा, समझिएगा, उसमें एक्सरसाइजेस को करना है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।